Assalamu alaikum. My name is Hifza. I am the teacher of TKS Senior Campus. Hope you all are fine and good. Okay, students, before starting our lecture, I want to share a good message with you. So today's good message is success is how high you bounce when you hit bottom. Okay, students, take out your English textbook on page number 18. Open your books on page 18. Take out your pencils, write date and day on the top of the page. And everyone, I'm calling your names, be attentive, okay? And turn on your video. आपकी बुक और पेंसिल मुझे नज़र आनी चाहिए. I'm calling your names, listen to your name carefully. Okay, Ali Abbas, Fatma Waqas, Manahil, Rayan Imran, Shine Ali Khan. okay, Warda Zubair, Zeba Zari Mijaz, Aruj Afroz. Okay, all of you turn on your video. Yazan, Zeba, बच्चे hurry up, open your books on page 18. Take out your pencils, write date and day on the top of the page. And I'm calling the names, okay? Turn on your video. Umama Ali, Warda Zubair, Yusra Imran. Hurry up. Zareem Ijaz, Abdul Bari, Imran Aziz. Yes, Manahil, bachche, where's your book? Manahil. Okay, show me your book. Good. Write date and day. Hurry up. Warda Zubair. Zareem Ijaz, your video isn't showing. Yazan, bachche, where's your book? Write date and day. Zeba, Umama Ali, Fatma Waqas, good. Imran Aziz, turn on your video. Yusra Imran, Ali Abbas. And Musawwir Shah, Abdul Bari. Hurry up. Turn on your videos and take out your book. Okay? Write date and day on page 18. So today we are going to read this. The topic is you are what you eat. Okay? हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया था. अब जो आपके पास जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसने डिबेट की थी, ओके, सो द नेम ऑफ द बॉय वॉज समीर. आज हम समीर की स्पीच देखेंगे. ये उसकी स्पीच है, ठीक है. ये उसके डिबेट में जो उसने सारा बोला था, ये सारा है उसका पैराग्राफ जो आपके पास नज़र आ रहा है. ये सारा उसी के अपने वर्ड्स हैं, ठीक है. ही गॉट फर्स्ट पोजिशन बिकॉज ऑफ दिस स्पीच, ठीक है. सो टुडे वी विल रीड दिस. लेट्स फाइंड आउट कि टॉपिक क्या था और उसकी स्पीच कैसी थी. ओके, सो आर वी ऑल ऑन पेज 18? ओके, द टाइटल इज यू आर व्हाट यू ईट. लेट्स रीड द आर्ग्यूमेंट्स समीर यूज्ड टू इम्प्रेस द जजेस एंड द ऑडियंस विद हिज डिबेटिंग स्किल्स. ओके, दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स. जो उसको टॉपिक मिला था, उस पर उसने जो बहस की थी, वो ये है, ठीक है, आपके पास. Okay, the topic was junk food is the main cause of health issues. Okay, do you know what is junk food? Junk food क्या होता है? Who will tell me? Anyone? Okay, yes, Fatma Waqas. जी बच्चे, unmute your mic. अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम. जी बच्चे. मैम, जंक फूड का मीनिंग है जो गंदी चीज़ें होती हैं. जो गंदी चीज़ें होती हैं? नो. क्यों, आप जंक फूड नहीं खाती? बाहर की चीज़ें. यस, गुड. बाहर की चीज़ें. हमारे पास जो बर्गर्स हो गए, और एग्जांपल दो मुझे, और क्या क्या होता है जंक फूड में?
और चिप्स, बिस्किट्स, जूस। Okay, good. Yes, Ali Abbas. Answer the same question. जी Ali Abbas. You want to answer? जंक फूड वो होते हैं ना जी। मैम, वो जो लोग अपने आप से बस बनाते हैं, वो फिर वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। Yes, कि वो जो है हमारे पास हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन आपको पसंद तो है ना, खाते तो सब हैं। यस। गुड। ओके ओके, लेट्स फाइंड के समीर के पास जंक फूड से रिलेटेड क्या क्या हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स थे, और उसके आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स जो है वो ट्रू भी है कि नहीं। ओके, लेट्स फाइंड। Assalamualaikum and good afternoon, respected teachers, honorable judges and respected audience. Today, as the first speaker of the debate, it gives me immense pleasure to be standing before you to express my humble opinion in favor of the topic. Junk food is the main cause of health issues. I will present my speech and Ayan as the second speaker will answer all the arguments presented by the opposing team. ओके, फर्स्ट राइट डाउन द मीनिंग्स जो इस पैराग्राफ में है आपके पास, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। आपके पास फर्स्ट लाइन में चेक करें, आपके फर्स्ट सेकंड लाइन में चेक करें, आपके पास वर्ड है इमेंस। इमेंस का मतलब है अलॉट, बेपना। ओके, ही सेइंग इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर। देखिए आपके पास बुक में यहाँ लिखा हुआ है इमेंस। फर्स्ट लाइन ये नज़र आ रही है आपको? सलाम के बाद जो उसका टॉपिक जहाँ स्टार्ट होता है, दिस वर्ड इज़ इमेंस। इमेंस का मतलब है अलॉट, उर्दू में इसको कहते हैं बेपना। डन। अब इसके नीचे ही आप दूसरा वर्ड देखें, आपके पास लिखा है ओपिनियन। ओपिनियन कहते हैं योर पर्सनल व्यू, आपकी जो राय होती है। अब जैसे अगर मैं, आप में से बहुत सारे होंगे जो जंक फूड के ख़िलाफ़ होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो इसके फेवर में होंगे। वो कहेंगे कि नो मैम, हमें जंक फूड पसंद है एंड वी विल ईट दैम। ओके, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद ज़्यादा हो और वो इसके ख़िलाफ़ ना सुन सके, ठीक है। तो इसको कहते हैं पर्सनल व्यू, यानी आप अपनी जब राय देते हो किसी भी बात से रिलेटेड, जब आप अपनी राय पेश करते हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं ओपिनियन। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ इमेंस, उसके नीचे ही आपके पास ओपिनियन। ज़ेबा बच्चे, आपके जो भी क्वेश्चन है आई विल गिव यू लास्ट 5 मिनट्स, देन यू कैन आस्क मी। ओके, अभी मीनिंग्स लिख लें। ओके, डन दीज 2 मीनिंग्स। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ लास्ट में एक मीनिंग है ओपोजिंग टीम। ओपोजिंग का मतलब है ऑपोजिट, ठीक है, जो ऑपोजिट टीम होती है। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ ओपोजिंग, ऑपोजिट। आई एम अगेन रिपीटिंग द मीनिंग्स। इमेंस, अलॉट, बेपना, ओपिनियन, पर्सनल व्यू, राय, ओपोजिंग, ऑपोजिट। डन। ओके, गुड। ओके, लेट्स एक्सप्लेन द पैराग्राफ। ओके, आपके पास सबसे पहले जो समीर की जो स्पीच जहाँ स्टार्ट होती है, सो ही स्टार्ट्स विद सलाम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून, respected teachers, honorable judges and respected audience. Okay, so this is a way how to start a debate. ठीक है, आपके पास डिबेट जो स्पीच होती है आपकी, वो कैसे स्टार्ट करते हैं? आपने पहले सलाम करना है, देन आफ्टरनून है तो आपने गुड आफ्टरनून कहना है, अगर मॉर्निंग है तो आपने मॉर्निंग कहना है, देन सबको आपने ऐसे बोलना है, रिस्पेक्टेड टीचर्स, ऑनरेबल जजेस एंड रिस्पेक्टेड ऑडियंस, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स भी बैठी होती हैं बिकॉज स्कूल की तरफ से है ना। ऑनरेबल जजेस, जो जजेस होते हैं, जो आपके जो मार्क्स लगा रहे होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि किसकी पोजीशन जो है कौन सी आनी है, ठीक है। एंड रिस्पेक्टेड ऑडियंस, ऑडियंस कौन होते हैं? मैंने आपको बताया था, ऑडियंस वो होते हैं जो सुन रहे होते हैं, ठीक है। वो आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, वो दूसरे स्कूल से आई हुई टीचर्स भी हो सकती है, सब हो सकते थे, ऑल आर काउंट इन ऑडियंस। ओके, सो today as the first speaker of the debate, it gives me immense pleasure to be standing before you to express my humble opinion in favor of the topic. Okay, जो समीर है वो इस टॉपिक के फेवर में है, यानी कि वो इसको सही समझता है कि येस, जंक फूड इज़ द कॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़। ओके, समीर जो है हमारे पास, ही इज़ इन द फेवर ऑफ दिस टॉपिक एंड ही सेज़ के थैंक यू सो मच एज अ फर्स्ट स्पीकर, आपने मुझे सेलेक्ट किया। सो हेयर मैं आपके पास अपने ओपिनियन शेयर करूँगा। एंड जो अयान है एज द सेकेंड स्पीकर, अयान एंड समीर बोथ आर इन वन टीम, रिमेंबर दिस। ओके, तो
अयान विल आंसर द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड बाय द अपोजिंग टीम. ओके, अयान जो है वो सारे जो आर्ग्यूमेंट्स समीर बताएगा तो वो उसको आंसर करेगा, किसी को उसमें से कोई क्वेश्चन करना हो तो. ओके, अंडरस्टूड. चले जी, लेट्स फाइंड. अब यहाँ से देखिए उसकी स्पीच स्टार्ट हो रही है. आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर आवर्स to make sure I gather the right information regarding the use and abuse of the junk food we eat. Abuse का मतलब है आपके पास improper use of something. ठीक है, when you use something in improper way. ठीक है, write down the meaning of abuse, improper use of something. improper use of something. ठीक है, जब आप एक चीज़ को प्रॉपर वे में यूज़ ना करो उसको कहते हैं मिस यूज़, या फिर क्या कहते हैं, एब्यूज़. मिस यूज़ भी कह सकते हैं इसको. ओके ओके, गुड. सो therefore I am very confident I will be able to convince you that junk food is a path to destruction. Destruction का मतलब है आपके पास damage, तबाही. ओके, write down the meaning of destruction, damage, तबाही. अच्छा, सो समीर इज सेइंग कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है रिगार्डिंग द टॉपिक तो वो इतनी इस तरह है, मतलब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टू से कि येस दीज ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स आर ट्रू एंड दिस विल कन्विंस यू. ओके, फॉर श्योर, मतलब ही इज़ 110% श्योर कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है रिगार्डिंग माई स्पीच रिगार्डिंग द टॉपिक तो वो सारी जो है आपको कन्विंस कर सकेगी. ठीक है, कन्विंस का मतलब है एग्री करना. ठीक है, जब आप अपनी बात पर सामने वाले बंदे को एग्री कर सको उसको कहते हैं कन्विंस. राइट डाउन द मीनिंग ऑफ कन्विंस, एग्री, एग्री करना, टू एग्री समवन. ओके ओके, लेट्स फाइंड कि ऐसा वाकई है, क्या वाकई वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं वो ट्रू है. वी डू फाइंड इट एक्साइटिंग एंड डिलिशियस. ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे जो है आपके पास जंक फूड की बात हो रही है. वो कह रहे हैं कि येस वी डू फाइंड इट एक्साइटिंग एंड डिलिशियस. हमें ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, हमें बहुत पसंद है जंक फूड. बट देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट एंड सेटिस्फैक्शन वी एक्चुअली कॉज डैमेज टू आवर बॉडीज़ दैट विल स्टे विद अस फॉर ईयर्स टू कम. ओके, ही इज़ सेइंग कि फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी हम अपने सुकून के लिए और सेटिस्फैक्शन के लिए और अपने प्लेजर के लिए हम जो है जंक फूड यूज़ तो कर रहे हैं, खा तो रहे हैं, बट उससे जो हमारा डैमेज हो रहा है दैट विल स्टिक विद अस फॉर ईयर्स. मतलब वो काफ़ी सालों तक उसका डैमेज पर रहता है. ठीक है, जो बॉडी को डैमेज करता है जंक फूड वो आपके पास काफ़ी ईयर्स तक वो रहेगा. ओके, in order to make sure I end my speech well in time, I have cut it short to briefly mention the arguments to prove that junk food is nothing less than poison. Okay. अब वो कह रहे हैं कि in order to make it short, कि मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा अपनी स्पीच को, तो मैंने इसमें से कुछ पॉइंट्स कट किए, बट मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ कि it is nothing less than poison. poison किसे कहते हैं, जहर को. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जंक फूड इज़ नथिंग लेस देन पॉइजन, यानी ये जो है आपके पास उसने इसको कंपेयर किया किस चीज़ से, पॉइजन से, जहर से. यानी वो इतना उसको कह रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए. ओके, फास्ट फूड इन मैनी केसेस इज़ हाईली प्रोसेस्ड एंड कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एडेड शुगर, अनहेल्दी फैट्स एंड सॉल्ट, सोडियम. Fast food carries, okay, when it replaces good nutrients in your diet, it can lead to poor nutrition, poor health and weight gain. Being overweight is a risk factor for a variety of chronic health problems including heart disease, diabetes and stroke. Okay, अब ये आपके पास सारे diseases बताए हुए हैं कि कौन कौन से diseases ये जो है junk food से हमें हो सकते हैं. But first write down the meaning of chronic. क्रोनिक किसे कहते हैं, ह्यूमन हेल्थ कंडीशंस, जो आपके पास हमारी जो हेल्थ से रिलेटेड जो डिजीज़ेस होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनको कहते हैं क्रोनिक डिजीज़ेस. ओके, नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्ट्रोक. स्ट्रोक मीनिंग इज़, ये भी डिजीज़ है बट इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन. ओके, जब आपके ब्रेन में जो आर्टरीज होती है वो प्रॉपर काम नहीं करती, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती, तो उसको कहते हैं स्ट्रोक. इट इज़ अ डिजीज़ इन ब्रेन. ठीक है, आप जस्ट इसको समझे, बिकॉज दीज ऑल आर डिजीज़ जो कॉज होती है बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ जंक फूड। ये आपके सारे साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, सो दीज ऑल आर डिजीजेस। गेटिंग माई पॉइंट? राइट डाउन द मीनिंग। स्ट्रोक, डिजीज और ब्रैकेट में लिख ले ब्रेन, मतलब इसका मतलब है रिलेटेड टू ब्रेन। जब मैं आपसे पूछूंगी व्हाट टाइप ऑफ डिजीज, देन यू कैन आंसर इन प्रॉपर वे कि हमारी जो ब्रेन में जो आर्टरीज होती है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती परफॉर्म, तो इस डिजीज़ को कहते हैं स्ट्रोक। एंड ये सारा किसकी वजह से होता है? दीज ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ जंक फूड। बहुत ज़्यादा जब आप जंक फूड इस्तेमाल करते हो तो आपकी बॉडी में ये सारी डिजीज़ेस पैदा होती हैं एंड दीज विल स्टक विद यू फॉर ईयर्स। जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट, यानी आप जंक फूड तो खा रहे हो, उस टाइम तो इंसान नहीं सोचता, उसको मज़ा आ रहा है बर्गर खाते हुए भी, पिज़्ज़ा खाते हुए भी, ओके, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए भी, बट आफ्टर दैट जो आपकी बॉडी में जो डिजीज़ेस वो पैदा कर रहा है, सो दीज विल कॉज यू अ लॉट ऑफ डैमेज टू योर बॉडी, और आपके साथ ये जो है ना फॉर ईयर्स यानी काफ़ी सालों तक फिर ये डिजीज़ेस रहते हैं। ओके, another problem caused by junk and fast food is obesity. Okay, this one is another disease, या आपके स्टमक से रिलेटेड है, which is associated with an increase in breathing problems also. Yes, देखिए आपकी बॉडी में जो अगर स्टमक में कोई इश्यूज़ हैं या आपके ब्रेन में कोई इश्यूज़ है, ये कोई भी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा आपकी बॉडी में कोई भी पार्ट, तो जाहिर सी बात है आपके जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स है वो भी कॉज होंगे इस वजह से, ठीक है। यानी आपको सांस का मसला भी होगा और भी बहुत सारे मसले होंगे, शुगर भी होगी। ओके, सो जंक फूड इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल दीज डिजीज़ेस, ठीक है, यानी बीमारियों की वो जड़ है। तो आप कोशिश करें कि आप इसको अवॉइड करें, कम करें। ओके, जंक फूड आल्सो लीड्स टू डिप्रेशन। ओके, डिप्रेशन किसे कहते हैं? जब एक बंदा जो है स्ट्रेस में होता है, जब वो उसको मेंटली वो सुकून से नहीं होता और हर वक्त उसके सर पे कोई टेंशन होती है, तो उसको कहते हैं डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन हम कहते हैं ना, ये डिप्रेशन का मरीज़ है, यानी ये बहुत ज़्यादा सोचता है, उसको सुकून नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, ठीक है। सो जंक फूड इज़ आल्सो कॉज ऑफ डिप्रेशन, यानी ये बीमारी भी किससे लगती है, किस वजह से है? जंक फूड से। और ये कौन कह रहा है यहाँ पे? द डिबेटर, ओके, द नेम ऑफ डिबेटर इज़ समीर। समीर इज़ सेइंग ऑल दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स कि आपके पास जंक फूड से ये बीमारियाँ कॉज होती हैं। सो समीर इज़ अगेंस्ट द टॉपिक, ठीक है। A study published in the journal Public Health Nutrition showed that eating commercially baked goods like donuts, muffins and burgers may be linked to depression. समझ आ गई आपको? जब आप मफिन्स, डोनट्स, बर्गर्स, कुछ भी जो जंक फूड से रिलेटेड हो आप ज़्यादा अमाउंट में खाओगे, सो इट विल कॉज यू द डिजीज़ कॉल्ड डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन आपके पास फिर इससे जो है आपके पास क्या होगा? ये वाली डिसीज़ कॉज होगी सबसे पहले, जिसको कहते हैं डिप्रेशन, ठीक है, यानी बंदा सुकून से नहीं रहता। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, द स्टडी डिटरमाइंड दैट पीपल हु ईट फास्ट फूड आर 51% मोर लाइकली टू डेवलप डिप्रेशन देन दोज हु ईट लिटल और नो फास्ट फूड। अब आपके पास देखिए एक रिसर्च हुई थी, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च की थी इस चीज़ पर कि दुनिया में जो 51% लोग हैं जो कि जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं 100 में से, ओके, आउट ऑफ 100 51% जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जंक फूड यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि तो जंक फूड से उन लोगों को डिप्रेशन उन लोगों में ज़्यादा पाया गया है एज़ कम्पेयर टू दोज हु डू नॉट यूज़ जंक फूड और who use it less, ओके, मतलब या तो वो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते, इसका खाते ही नहीं है, ठीक है, हेल्दी फूड खाते हैं, और या तो वो खाते हैं बट इन लिमिट्स, मतलब कभी कभी। सो ऐसा है आपके पास कि जो 51% है तो उनमें जो ज़्यादा जंक फूड यूज़ करे उनमें ये डिप्रेशन जो है ये ज़्यादा पाया जाता है, ओके। नाउ मूव टूवर्ड्स पेज 19। पेज 19 पर आप सब डेट एंड डे राइट करें। मोहम्मद अब्बास, बच्चे टर्न ऑन योर वीडियो। आपकी वीडियो ऑन नहीं है। हुरब, फातिमा वकास,
अजान खान, मुसव्विर शाह। हरी अप मोहम्मद अब्बास, टर्न ऑन योर वीडियो। युसरा इमरान, जरी मिजाज। बच्चे योर वीडियो इज़ नॉट शोइंग टू मी। ओके, नाउ लुक एट पेज 19। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं आगे क्या है आपके पास। चॉकलेट एंड ग्रीसी फूड्स आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर एक्नी। अच्छा, आपने कभी नोट किया जो हमारे पास चॉकलेट और ग्रीसी फूड्स मतलब जो ऑयली चीज़ें होती है जिसमें एक्सेस ऑयल होता है, ज़्यादा ऑयल यूज़ हुआ होता है, ये जो आपके पास कुछ भी हो सकता है उससे रिलेटेड, पकौड़े हो सकते हैं, समोसे हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो ऑयल में बनती हैं। ठीक है, ओके, तो उसको ब्लेम किया जाता है फॉर व्हाट, फॉर एक्नी। एक्नी जानते हो आप किसे कहते हैं? जो फेस पर आपके मतलब रफनेस सी आ जाती है, जो एक्नी यानी जो पिंपल्स जिसको कहते हैं ना, दाने जो होते हैं, तो वो अगर आपके फेस पे निकलते हैं तो इट इज़ ऑल्सो, मतलब वैसे इसमें ये कह रहे हैं कि इसको किसको कहा जाता है कि ये किस एक्नी का कॉज किसको कहा है यहाँ पे? चॉकलेट एंड ग्रीसी फूड्स। बट दे आर नॉट द रियल कल्प्रिट्स। कल्प्रिट्स कहते हैं मुजरिम। कह रहे हैं कि नो, चॉकलेट एंड जो ग्रीसी फूड है वो आपके पास कल्प्रिट्स नहीं है, यानी दे आर नॉट द मुजरिम। ठीक है, आपके पास जो मुजरिम है यानी जो जिसको ब्लेम किया जाता है हर वक्त, ठीक है, वो नहीं है यहाँ पे। कल्प्रिट्स कहते हैं उसको, मुजरिम को। ठीक है, सो जो एक्नी के लिए ज़्यादातर आपने भी सुना होगा, आपको लोग कहते होंगे कि हमारे पास एक्नी इसलिए हो रही है, आपके फेस पे आ रही है क्योंकि आप जो है ग्रीसी फूड्स यूज़ करते हो, आप ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हो। बट नो, दिस इज़ नॉट द वैलिड रीज़न। ठीक है, ये हमारे पास जो है एक्चुअल रीज़न नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। ओके, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन पेज 19। सो आई होप आप सबको समझ आई हो, इसको अच्छे से रीड करें। आई विल आस्क क्वेश्चंस टुमारो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।